हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्रीमिसेस। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द टू मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। द टू मोशंस ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रेवोल्यूशन? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं rotation. And what is revolution? The movement of the earth around the sun in a fixed path is called revolution. जब अर्थ मूव करती है सन के आसपास, वो भी एक फिक्स पाथ पर, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं revolution. So these are the two motions of the earth, rotation and revolution. Now we will see about them in detail. So first beginning with rotation of the earth. In this picture, we can see the rotation movement of the earth. Earth rotates on its axis from west to east. As you can see from the green arrow, the earth is rotating from west to east on its axis. Next is orbital plane. What is an orbital plane? Orbital plane is a plane formed by the orbit. जब अर्थ की ऑर्बिट एक प्लेन फॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. Now we can see in the diagram, this is the orbital plane. This is the axis. Red color shows the axis of the earth. Now the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अर्थ की एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री एंगल बनाती है. So this was about orbital plane of the earth. Now the earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. अब हमने पढ़ा था कि अर्थ जब एक्सिस पे मूव करती है उस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन. अब अर्थ कितना टाइम लेती है रोटेशन में? तो अर्थ टेक्स 24 hours to complete one rotation. एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 hours लेती है. The period of rotation is known as Earth Day और उस पीरियड को हम बोलते हैं अर्थ डे. This is the daily motion of the earth. Earth rotates daily, so we experience day and night. अर्थ की रोटेशन मूवमेंट की वजह से we experience day and night, या rotation of the earth causes day and night. Next is about the circle of illumination. Due to spherical in shape of the earth, only half of the earth gets the light from the sun at a time. The circle that divides day from night on the globe is called circle of illumination, and this circle do not coincide with the axis. Now, Earth, due to spherical in shape, Earth is in spherical shape, so half of the Earth gets light from the sun at a time. एक बारी में Earth की एक साइड जो है sun को फेस करती है और उस साइड पे जो है वो डे होता है, एंड द रिमेनिंग पोर्शन जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती वहाँ पे जो है नाइट होती है. तो जो डे एंड नाइट को डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एंड दिस सर्कल डू नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस. ये एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता. So this was about the circle of illumination. Next we move on to what happens if Earth do not rotate. जब Earth rotate नहीं करती तो क्या होता है? The portion of the earth facing the sun would always experience day. अब अर्थ का वो पोर्शन जो सन की तरफ फेस करेगा वहां पे हमेशा सनलाइट होगी और जिसकी वजह से डे रहेगा फुल टाइम. As a result, bringing continuous warmth to the region, जिसकी वजह से उस रीजन में जो है गर्माइश रहेगी. The earth, the other half would remain in darkness and be freezing all cold all the time. और अदर हाफ जो जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती वहाँ पे हमेशा डार्कनेस रहेगी और वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड होगी फुल टाइम. लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन. और इन्हीं दोनों कंडीशन में जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी और जहाँ ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी. So this happens when the earth do not rotate. Next we move on to revolution of the earth. अर्थ अब मूव करती है अराउंड द सन.
एक फिक्स पाथ, तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब अर्थ कितना टाइम लेती है रेवोल्यूशन के लिए? सो अर्थ टेक 365 1/4 डेज, यानी कि 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के आसपास रिवॉल्व करने के लिए अर्थ जो है वो 365 1/4 ईयर, जिसको हम बोलते हैं 1 ईयर लेती है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। Now we will learn about leap year. What is leap year? In February we know when there are 29 days, हम उसको बोलते हैं leap year. So let's see how. A year consists of 365 days only and ignores 6 hours. These 6 hours saved every year are added to make one day, 24 hours, over span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4 years, February is of 29 days. Such a day with 366 days is called leap year. Now, in one year, there are 365 days and 6 hours, जो कि 6 hours को हम ignore कर देते हैं. उन 6 hours को हम हर साल सेव कर देते हैं, यानी कि 6 hours हर साल, यानी कि अगर हम उसको इग्नोर करेंगे 4 ईयर तक तो कितने हो जाएंगे? 6 + 6 + 6, यानी कि टोटल 24। 4 साल तक हमने उन 6 आवर्स को इग्नोर किया तो वो कंबाइन करके बन गए 24 आवर्स। अब 24 आवर्स इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 डे के, तो वो 1 डे हम ऐड करते हैं मंथ ऑफ फेब्रुअरी में। Thus every 4 year February is of 29 years. तो हम देखते हैं कि हर 4 साल बाद फेब्रुअरी में जो है 29 डेज होते हैं और 29 डेज की वजह से उस ईयर में टोटल हो जाते हैं 366 डेज एंड उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। सो दिस वाज अबाउट लीप ईयर, जिसमें हमारे 366 डेज यानी कि 1 डे हम ऐड करते हैं। Now next is about the season. We all know that there are 4 types of seasons, that are summer, winter, spring and autumn. But हम कैसे बोले कि seasons जो है ये change कैसे होते हैं? What is the reason behind change in all these 4 types of season? हम seasons जो हैं change होते हैं due to change in the position of earth around the sun, यानी कि revolution की वजह से। जब earth रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन के अराउंड तो हम एक्सपीरियंस करते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम ओवर अ होल ईयर। हम देखते हैं कि चेंज इन सीजन्स कैसे होते हैं ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट वी विल सी ऑन 21 जून, यानी कि 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। वो कैसे होता है? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ Cancer, so this area receives more heat and area near poles receives less heat as sun rays are slanting. 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन रेज डायरेक्टली जो है फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से उस एरिया में जो है ज़्यादा हीट होती है कंपेयर टू हीट एट द पोल्स, क्योंकि वहाँ पे सन रेज जो होती हैं वो स्लांटिंग होती हैं। सो देयर इज समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है समर और साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है विंटर। और उस दिन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट। नाउ ऑन 22 December, longest day and shortest night in southern hemisphere. There is a longest day and shortest night जो in southern hemisphere क्यों होता है? The Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun, so the larger portion of the southern hemisphere gets light. Thus, it is summer in the southern hemisphere. अब 22 दिसंबर को सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जिसकी वजह से उस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है और वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं समर। सो ऑन 22 December there is summer in southern hemisphere and winter in northern hemisphere. Now we will see this in the diagram. Sun is at the center and earth is revolving around it and causing change in season. So on
21st जून वी सी दैट अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पार्ट है वो सनलाइट एक्सपीरियंस कर रहा है डायरेक्टली, जिसकी वजह से यहाँ पे समर है और विंटर है सदर्न हेमिस्फेयर में। सिमिलरली इधर हम देखते हैं कि ऑन 22 दिसंबर सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल कर रही है सदर्न हेमिस्फेयर पे, और जिसकी वजह से समर है सदर्न हेमिस्फेयर में और विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट समर सॉलिस्टिस। अब जब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस करता है समर और सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस करता है विंटर, उस पोजीशन ऑफ द अर्थ को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। सिमिलरली विंटर सॉलिस्टिस जब 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे एक्सपीरियंस करता है विंटर एंड सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस समर, उस पोजीशन ऑफ द अर्थ को हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। नेक्स्ट इज इक्विनॉक्स। ऑन 21 मार्च एंड 23 September, direct sun rays of the sun falls on equator and whole earth experience equal days and equal night। 21 मार्च और 23 सितंबर को हम देखते हैं कि सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करते हैं इक्वेटर पे, जिसकी वजह से पूरी अर्थ पर इक्वल डेज होती है और इक्वल नाइट होते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ऑन 23 सितंबर देयर इज ऑटम सीजन इन नॉर्थ में ऑटम सीजन होता है, और स्प्रिंग इन सदर्न हेमिस्फेयर, स्प्रिंग होता है सदर्न हेमिस्फेयर पे। On 21 March, spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere। एंड इसका ही वाइस वर्सा होगा, हमारा 21 मार्च को स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होता है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में। इन द डायग्राम वी सी द कंडीशन ऑफ इक्विनॉक्स। These two represent the position of equinox. On 21st March, there is spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. And on 22nd September, there is spring in southern hemisphere and autumn in northern hemisphere. So this was about the revolution of the earth and change in season. So change in season is due to revolution of the earth, and change in day and night is due to rotation of the earth. This was about rotation and revolution movement of the earth. Thank you. I hope आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।